Thank you for tuning in to another episode of the Misal podcast. In this 45th episode, I'm joined by Mutaher Khan. He's a co-founder at Data Darbar and he writes for Dawn. I invited Mutaher because I wanted to learn more about the 5 digital banking licenses that were just issued by the State Bank of Pakistan. Some companies that were considered to be frontrunners did not get the license, and seemingly unheard of companies got the license. What happened and what can we expect in the future? Let's find out. Welcome back to the Misal podcast, Mutaher. How are you? I'm good. How about you? Thank you so much. आना जाना लगा रहता है. Yeah, you're a bestie now. This is your 3rd episode, so this is great. But yeah, thank you for joining on such a short notice. Last time we spoke, we talked about digital banking licenses, and on Friday, the State Bank of Pakistan announced 5 digital banking licenses. So I couldn't think of anyone with more experience than you on this topic and more knowledge about this topic than you. You have covered it extensively for Dawn. So let's jump right into it. Can you tell us a little bit more about what happened on Friday? State Bank जो है काफी टाइम से नए लाइसेंसिंग regimes लेकर आ रहा है. This is not the first licensing regime they came up with. इससे पहले 2019 में they came up with EMI जो सादा पे नया पे जैसी कंपनीज के पास है. उससे भी 4 साल पहले 2015 के अंदर इन्होंने निकाले था PSO PSP जो कि सेफ पे अप्लाई कर रहा है, जो eventually they brought in one link under that licensing. तो ये स्टेट बैंक की एक कंसिस्टेंट थीम रही है. हर 4 साल बाद एक टेक्निकली नया या 4 से 3 साल बाद एक नया लाइसेंसिंग रजीम आ रहा है पिछले 9 साल से. तो ये उसी की कंटिन्यूएशन है. अभी जो इन्होंने निकाला है 5 एंटिटीज को दिया है. 20 ने अप्लाई किया था, उसमें काफ़ी बड़े बड़े नाम थे और काफ़ी लोग एक्साइटेड भी थे. जैसे फॉर एग्जांपल साउथ अफ्रीका का एक बहुत बड़ा बैंक है डिजिटल बैंक टाइम, वो था. उसके अलावा फ्रंटियर मार्केट से थे, अलिफ था सेंट्रल एशिया से जिन्होंने अच्छा काम किया है. आई डोंट नो क्योंकि सेंट्रल एशिया बाकी टाइम तो इज अ वेरी वेल फंडेड स्टार्टअप. फिलीपींस में एक्सपैंड कर लिया. देन ओपे हैड अप्लाइड एज वेल. जैज कैश बैंक्स के अंदर HBL, देयर वाज डी बैंक फ्रॉम पाकिस्तान, सिक्वोया बैंक, राइट. तो देयर वर लॉट ऑफ बिग नेम्स. बट जब वो लाइसेंसीज अनाउंस हुए तो थोड़ी सी हैरानी भी हुई सबको कि फॉर एग्जाम्पल टाइम was believed to be a favorite, at least from the people I spoke with. Of course मैं यहाँ पे स्टेट बैंकर्स की बात नहीं कर रहा हूँ. I am talking about startup वाले लोग. तो उसके अंदर time was a big favorite. In the end they awarded the license to Easy Pesa. The second was Hugo Bank. The Hugo Bank is basically a joint venture between Muller and Phillips, Gates Bros, and a Singaporean fintech called Hugo Save. So Hugo Bank ये इन 3 का है. Then there is KT Bank. KT Bank is a joint venture between City School, Fatma Fertilizer, and a Nigerian fintech which is supposed to be building a money up for Africans. तो इन तीन इदारों के बीच में ये बना है. I don't know Pakistan. How does Pakistan fit into that? Then we have Mashriq. मिडल ईस्ट से भी और भी अप्लाई किया था. हाला ने किया था. सऊदी जो EMI है बेसिकली. उसके अलावा वी हैव कुवैत रकामी पाक कुवैत इन्वेस्टमेंट कंपनी का जिसके साथ नाम उन्होंने दिया नहीं, बट नदीम हुसैन तो इज बेसिकली द पर्सन इन्वॉल्व. एंड नदीम हुसैन, फॉर दोज हु डोंट नो, was the brainchild behind Easy Pesa. Tamir Bank Nadeem Hussain ने बनाया. Tamir Bank was acquired by Easy Pesa, and Easy Pesa in the end. तो Nadeem Hussain की 2 कंपनीज जो है आज लाइसेंस है. 40% लाइसेंसिंग नदीम हुसैन की कंपनीज को मिली है. That's basically a nutshell. जो फ्राइडे को हुआ और उसकी वजह से लोग थोड़ा सा हैरान है कि इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है लोकल कंपनीज की, लोकल बिजनेसेस की. तो M&P हो गया, फातिमा फर्टिलाइजर हो गया, इवन पाक कुवैत इन अ सेंस हम कह सकते हैं. बट इवन दो नदीम हुसैन हैज अ वेरी गुड प्रोफाइल इन टर्म्स ऑफ financial services, but it's still it's not exactly a local group, but not a fintech either. So I have a few follow-up questions. लेकिन इससे पहले कि हम थोड़ा सा और deep down इसमें जाए, can you please describe what a digital bank is compared to like a regular brick and mortar, and why is it important? Digital bank और brick and mortar बैंक के अंदर कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है. In theory, that's the best part about digital banking license, right? उससे भी थोड़ा सा पहले आते.
स्टेट बैंक ने काफ़ी अरसे से कोई बैंकिंग लाइसेंस इशू नहीं किया है. बैंकिंग बीइंग अ रेगुलेटेड बिजनेस इज़ अ वेरी कोवेटेड बिजनेस, जिसके अंदर ग्रुप्स अपनी प्रेजेंस बढ़ाना चाहते हैं. अभी जब सांबा when Samba was up for sale, a lot of local businesses bid for the license. It has a certain prestige, like you get a lot of cost advantages in your, अगर आपके पास डिपॉजिट आ रहा है मुफ्त का, आपको गवर्नमेंट को लेंड करना है, तो it's a very good business to be in. So everyone wants a license, but thing is they can't get a license otherwise. They can't get a traditional banking license. The only way they can get a traditional banking license is that if an existing bank is selling itself. तो आप बैंक खरीद सकते हैं, आप लाइसेंस नहीं खरीद सकते. That is the way you go about doing banking in Pakistan right now. So the digital banking license for a lot of companies looking at banking in Pakistan, this was a new avenue to get in, right? क्योंकि ट्रेडिशनल से तो आप नहीं आ सकते. दैट इज वन थिंग. अच्छा, इन थ्योरी कोई ऐसा फर्क नहीं है. बैंक क्या कर सकता है अमूमन? बैंक वैसे तो करने को बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, बट बुनियादी तौर पे आप ये कर सकते हैं कि आप कस्टमर से डिपॉजिट ले सकते हैं. आप उस डिपॉजिट की बुनियाद पे यानी कि आप पेमेंट्स करवा सकते हैं. आप कस्टमर को ही लेंड कर सकते हैं. वो क्रेडिट कार्ड की सूरत में हो सकता है, गाड़ियों के लोन की सूरत में हो सकता है, होम लोन की सूरत में हो सकता है, एंड सो ऑन. या आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं. वो इन्वेस्टमेंट्स गवर्नमेंट हो सकती है, वो इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में हो सकती है, कहीं और हो सकती है. तो बुनियादी तौर पे बैंकिंग ये तीन चीज़ें करता है. फ्रॉम अ कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू ये तीन चीज़ें अहम है. ये तीन चीज़ें डिजिटल बैंकिंग लाइसेंस कर सकता है, जो कि पिछले लाइसेंसिंग की इजाज़त नहीं देते थे. तो सादा पे की अगर एग्जाम्पल लेते हैं, जो कि डिजिटल वॉलेट जो होता है, डिजिटल वॉलेट इन तीन में सिर्फ एक चीज़ कर सकता है, पेमेंट्स. तो सादा पे अगर आप जाएँ तो आप जाके सिर्फ बिल पे कर सकते हैं, या आप पीयर टू पीयर ट्रांसफर्स कर सकते हैं, या आप कैश वगैरह विड्रॉ कर सकते हैं. इट ऑल कम्स डाउन टू पेमेंट्स. आप उस पर जाके क्रेडिट कार्ड अप्लाई नहीं कर सकते, आप उस पर जाके होम लोन अप्लाई नहीं कर सकते, गाड़ी का लोन अप्लाई नहीं कर सकते. यू कैन इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट, यू कैन इन्वेस्ट इन बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, एंड सो. दैट वाज द लिमिटेशन विद द प्रीवियस लाइसेंसिंग regime, and this is exactly what digital banking solves. That it broadens the scope of fintech or legacy groups. Now it broadens the scope because payments is a very difficult business to make money from, which makes this entire whole proposition, wo fintech super app wali proposition, more appealing than just pure payments play, which is why digital banking was so sought after. इसकी hype भी बहुत ज़्यादा हुई थी compared to all other licensing. That was in essence the reason. इसमें बस एक थोड़ा फर्क क्या है, in primarily in at least in spirit आप branches नहीं लगा सकते. आपकी सर्विस डिलीवरी शुड बी टेक बेस्ड. देर इज सम, इन्होंने स्टेट बैंक ने थोड़ा सा इसमें आपको रूम दिया हुआ है कि आपको कियोस्क लगाने का और ये सब करने का, बट अगेन दैट इज नॉट द एक्सपेक्टेड form of service delivery. In the end, service delivery is expected to be through an app or internet platform, web platform. That is the primary difference. Otherwise, कोई ऐसा फर्क नहीं है. Thank you for explaining that. So now let's jump right back into the companies or the applicants that received the license. तो उसमें से दो नाम जो है वो तो Easy Paisa and Mashriq Bank are two well-known names. There are three other names in this list that are at least I did not, I was not aware. Why do you think those three banks or companies got the license? It's a guess for me as well. काफी unexpected नाम था. ऐसे I expected some foreign players to be involved, and I expected actually a foreign groups को ज़्यादा ही मिलेगी in the end licensing, क्योंकि obviously government wants FDI, state bank wants more dollars in, so it makes for good PR. So at least ये मेरा अपना guess था. Even Easy Paisa के अंदर before we get to other players, I think सबसे पहले Easy Paisa वाला point is very interesting, क्योंकि आज से कुछ महीने पहले तक स्टेट बैंक was trying to force its sale onto first MCB and then UBL. तो स्टेट बैंक खुद टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस को जबरदस्ती बिकवाना चाह रहा था, बिकॉज टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस की फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी बुरी थी कि हर साल वो जितने लॉसेस देते हैं उनकी पूरी इक्विटी वाइप ऑफ होती है. फिर उनकी इक्विटी में उनके स्पॉन्सर्स जो कि अली पे और टेलीनॉर पाकिस्तान है, वो दोबारा पूरी इक्विटी इंजेक्ट करते हैं. एक स्पॉन्सर टेलीनॉर पाकिस्तान है. टेलीनॉर पाकिस्तान के खुद बुरे हालात हैं,
टेलीनॉर पाकिस्तान के रेवेन्यू नीचे जा रहे हैं। आई थिंक बॉटम लाइन में उनकी इस दफा कुछ मसला हुआ था। टेलीनॉर पाकिस्तान खुद पाकिस्तान छोड़ना चाह रहा है। कुछ 4 दफा उन्होंने पिछले 1 साल के अंदर खबर छोड़ी है कि हम बायर ढूंढ रहे हैं, बायर ढूंढ रहे हैं, बायर ढूंढ रहे हैं। तो एक स्पॉन्सर ऑलरेडी उसका डावाडोल हो रहा है कि वो पाकिस्तान में रहेगा नहीं रहेगा। दैट इज वेरी सरप्राइजिंग। अली पे इन दी एंड ऑब्वियसली आई डोंट थिंक उसमें कुछ ज़्यादा देयर अ जायंट, तो मैं कुछ देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट देयर क्रेडिबिलिटी एंड आई एम नॉट सेइंग दैट टेलीनॉर की भी क्रेडिबिलिटी को सवाल नहीं है, बट उनकी market की क्या plans हैं, that is, it's not clear. What happened is like the 5 applicants that got the license, then there were 15 applicants. Like, you know, State Bank of Pakistan was very out there and kept saying that, oh, 20 applicants have applied. तो उसमें से जो 20 applicants में से जो 5 applicants को जो दिया है, the 15 applicants that did not get the license, उसकी क्या वजह थी? क्यों है ऐसा कि State Bank of Pakistan cannot give licenses to all 20 of the applicants? स्टेट बैंक ने जनरली बैंकिंग लाइसेंस क्योंकि सिस्टेमिक रिस्क होता है तो सबको बहुत बेसिबिट देते हैं, और बैंकिंग लाइसेंस दुनिया भर में, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, बहुत ही उसकी एक खास प्रेस्टीज है, तो बड़ा ही देखभाल किया, बहुत ही सिलेक्टिवली ऑफर किया जाता है। अब वो क्या वजह है स्पेसिफिकली, ये उन 15 ने वो नई क्राइटेरिया मीट नहीं किया। वो क्राइटेरिया कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी अबाउट द फैक्ट के क्लाउड के ऊपर डेटा रखते हैं। अगर कोई क्लाउड पर डेटा रख रहा है और उनके सर्वर नहीं लगा सकते, बैंकिंग के अंदर आप सिर्फ नॉन क्रिटिकल डेटा ही क्लाउड पे रख सकते हैं आपको, वरना आपको अपने प्रेमिस पे रखना पड़ता है। आप लोकल क्लाउड प्रोवाइडर्स को नहीं रख सकते। इट्स नॉट अबाउट पाकिस्तान में डेटा रखना पड़ता है, इट्स अबाउट अपने सर्वर्स पे रखना पड़ता है। तो अगर कोई क्लाउड करता भी है, दैट इज वन ऑफ द रीजन। जैसे HBL की ऐप जो डाउन हो रही होती है, शुरू में अच्छी चलती थी, 2021 में या 20 के अंदर जब एकदम से कोविड में के बाद ग्रोथ आई और उनकी यूजर्स इतने हो गए कि सस्टेन नहीं कर पाया, ऑब्वियसली दे हैवंट एक्सपेंडेड देन सिंस ग्रोथ, इट्स ऑन देम इन एनी केस। बट क्लाउड की जैसे एक चीज हो गई, फिर दूसरी चीज हो गई फाइनेंशियल पोजीशन का भी एक फैक्टर होगा। उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाज, बट आई डोंट सी हाउ देन इन दैट केस हाउ इजी पैसा गॉट इट, या अगर लॉसेस वाली चीज़ है। खैर लॉसेस का इतना मसला नहीं है। जनरली ये होता है कि आप देखते हैं फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, स्पॉन्सर की कैपिटल कमिटमेंट कितनी है। अब जो जिनको लाइसेंसिंग मिली है उनके पास पैसों की एज सच कोई कमी नहीं होगी। इट्स नॉट कि अली पे के पास या टेलीनॉर के पास कोई ऐसा पैसों का मसला है। उसके बाद ऑब्वियसली मशरिक के पास देयर इज नो क्वेश्चन, कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सोवरेन फंड्स। जो लोकल कैपिटल के पास ही पैसा तो बहुत पड़ा है वो रियल एस्टेट में, एंड दैट इज द वे आई सी इट, दैट हैज़ बीन द ट्रू पॉजिटिव कि हो सकता है ये 3-4 ग्रुप्स जो हैं जो अपने पैसा रियल एस्टेट में लगा रहे थे एक्स्ट्रा, थोड़ा बहुत अब इनका फिनटेक में आ जाएगा। बट कोई स्टेट बैंक ने जहमत की है बताने की कि जिन्हें नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला और जिन्हें मिला तो क्यों मिला है, बट इट्स जस्ट के बेस्ड ऑन आवर ड्यू डिलिजेंस। अब व्हाट एग्जैक्टली इज देयर ड्यू डिलिजेंस, दे डोंट केयर टू मेक इट क्लियर। 20 एप्लीकेंट्स थे, उसमें से कुछ मशहूर नाम थे, जाहिर सी बात है। आपने मेंशनड डी बैंक, अलिफ बैंक, टाइम, ठीक है। तो these were like known companies, and of course D Bank's existence is based on this license, right? They raised money based on this fact that they will get the digital banking license. So now that they haven't received this license, does that mean, or not just D Bank, could be anyone else, does that mean they will cease to exist, or will they keep trying to get this license? Because शुरू में मैं पढ़ रहा था कि there were times when the State Bank of Pakistan said that it will be issuing 5 to 7 licenses. So it's only issued 5 so far. Is it possible that they might still come out and say, okay, ये 2 और कंपनीज हैं जिनको हम इशू कर रहे हैं लाइसेंस? अब मुझे भी स्टेट बैंक की क्या मंतक तो समझ में नहीं आई कभी, बट जब स्टेट बैंक, जब बहुत सारे 20 एप्लीकेंट्स थे उसमें से बहुत सारे बैंक्स थे, तो जो नाम आए थे आपके पास आए थे, HBL का नाम आया था विद फिंजा, अस्करी वाज विद डी बैंक, UBL apparently was standalone, Al-Falah was there, Suneri was there as well from जो इनिशियल लिस्ट आई थी। From what I know, and this is for a fact, कि स्टेट बैंक ने बहुत खुद कहा था, मतलब बैंकर्स को ना, बैंक कहता है आप DRB के लिए अप्लाई करें, आप DRB के लिए अप्लाई करें। कुछ बैंक्स ने किया, कुछ बैंक्स ने नहीं किया, मगर इन दी एंड किसी भी एग्जिस्टिंग बैंक को लाइसेंस नहीं मिला, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि उनको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं थी, मतलब मल्टीपल। तो डी बैंक
की ये लाइसेंसिंग थी वो टेक्निकली वाज विद अस्करी बैंक. इट वाज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन कंसोर्शियम बनाया था उन्होंने विद अस्करी बैंक. तो दैट कुड बी वन ऑफ द रीजंस कि एग्जिस्टिंग बैंक्स को नहीं मिला तो डी बैंक को नहीं मिला. नाउ दैट कुड बी वन ऑफ द रीजंस. आई एम नॉट श्योर कि स्टेट बैंक का हो सकता है बैकलैश आता है जो भी होता, क्योंकि अगर अब अस्कर डी बैंक की इन थ्योरी पॉसिबल है डी बैंक अस्करी बैंक के लाइसेंसिंग के ऊपर बैंकिंग कर सके. इन थ्योरी ये ईएमआई लाइसेंस आने से पहले ये चीज हो सकती थी. पाकिस्तान के अंदर एक प्रेसिडेंट था. तो अगर कीनू ऐप होती थी 2018 के अंदर, कीनू वाज primarily a technology player. Keenu did not have any license. Keenu relied on Bank Al Habib. Keenu ने अपना डिजिटल वॉलेट बनाया. केवाईसी का जो प्रोसेस था कीनू ने बनाया. ऑनबोर्डिंग का बेसिकली पूरा प्रोसेस कीनू ने बनाया. मर्चेंट एक्विजिशन कीनू ने की. बट जो एक्चुअल पैसे होल्ड करता था इन अकाउंट दैट वाज बैंक अल हबीब. जिसका अकाउंट नंबर मिलता था दैट वाज बैंक अल हबीब. ये ईएमआई आने से पहले की बात है. तो उस तरह का फ्रेमवर्क पाकिस्तान में एग्जिस्ट किया है. वो रेगुलेटरी आर्बिट्राज की था या जो भी था, बट एट वन पॉइंट इट डिड वर्क. तो डी बैंक के लिए पॉसिबल है कि नंबर वन ये अस्करी के ऊपर ही वो कर ले. अच्छा, दूसरी चीज़ इन दी एंड आई थिंक अगर कोई सांबा वाम्बा वापस अगर बेचने की बात आती है तो मे बी डी बैंक विल बी बैक एंड ट्राई टू बाय इट. इट्स पॉसिबल. टैग ने भी कोशिश की थी, बहुत सारे ने कोशिश की. दूसरी चीज़ ये है कि डी बैंक का दूसरा तरीका जो है जाने का, अगेन और किसी भी लाइसेंस में हो जाएंगे, और डिजिटल बैंक का लाइसेंस मिलता तब भी ये तरीका उनका उतना ही मसला होता उनका. वो ये है कि डी बैंक कैन अप्लाई फॉर ईएमआई एंड देन डी बैंक कैन अप्लाई फॉर एनबीएफसी लाइसेंस एंड देन डी बैंक कैन अप्लाई फॉर आईएफएस, इन्वेस्टमेंट फाइनेंस सर्विस, फाइनेंशियल वो आईएफएस का लाइसेंस होता है, एडवाइजरी वगैरह का इन्वेस्टमेंट करवाते हैं. तो डी बैंक 3 लाइसेंस वो टेक्निकली it would be very ironic because it's a D bank without a banking license. तो बैंक नहीं हुआ हो, इट्स ए डी फिनटेक के अलावा उसको बैंक किसी हाल में नहीं हुआ. तो ये वाली चीज़ है. बट अच्छा, अभी लेकिन जहाँ तक मजीद 2 से 3 लाइसेंसिंग या इवन अगले 15 लाइसेंसिंग या अगले 50 लाइसेंसिंग ऐसा कुछ क्लियर नहीं है. ये अगेन बैंक ना स्टेट बैंक ने ये क्लियर किया है. 5 से 7 भी स्टेट बैंक ने नहीं, इन्होंने ऐसा कुछ लिखा नहीं. 7 का तो कहीं नहीं लिखा है इन्होंने. एक्चुअली उन्होंने 5 को भी नहीं लिखा जितना मैं देख रहा हूँ. प्रॉब्ली मार्केट का अपना शोशा था rather than स्टेट बैंक का शोशा. One thing that I noticed right when you were talking about this, कि भाई Askari Bank, for example, was sponsoring D Bank, right? Askari Bank is sponsoring D Bank and it didn't get it. But on the other hand, you have a fertilizer in a school sponsoring a company or creating a joint venture and they get it. That doesn't make any sense. That doesn't make any sense from the point of view of like, what is a school doing trying to get this license? फातिमा फर्टिलाइजर एटलीस्ट जो है कोशिश कर रहा है काफी टाइम से बैंकिंग में घुसने की. तो सांबा के लिए फातिमा आया था और उन्होंने उस पर बिड डाली थी. टैग में उनका स्टेक था. टैग eventually wanted to become a digital bank. तो फातिमा वहाँ पे आया था. फिर यहाँ डीआरबी खुला, फातिमा इधर आ गया. तो फातिमा बहुत कोशिश कर रहा है अपना हाथ एक बैंकिंग लाइसेंस पे लाने की. अगर रिसेंटली देखा हो, डिजिट को भी लाइसेंस सीएमआई का वो मिला था इन पायलट अप्रूवल का. इट कुड बी पार्ट ऑफ द एक्सपैंडिंग फॉर मेकिंग सोल्यूशंस फॉर एग्री फॉर एग्जाम्पल. तो मे बी डिजिटल रिटेल बैंक इनका जो प्रपोजल है, इनकी जो एक्चुअली प्रेस रिलीज ही कह लें, आई थी मई के अंदर, जिसमें कूडा सिटी और फातिमा से अली मुख्तार बात कर रहे हैं. इट्स नॉट एनीवन एल्स. इट्स स्पेसिफिकली फातिमा गोभी बीसी का जीपी बात कर रहे हैं, जिसने इन्वेस्टमेंट की टैग के अंदर. वो बात कर रहा था इसके ऊपर कि लाइसेंसिंग की में क्यों तो नहीं, कि वही बात तो यही थी कि मतलब हम फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाना चाहते हैं, एजुकेशन के लिए नए यूज़ केसेस, एग्री के लिए नए यूज़ केसेस, कूडा विल प्रोवाइड टेक्नोलॉजी. तो ये बात हो रही थी. तो ये बैंकिंग फातिमा की कोशिश तो बहुत टाइम से कर रहा है. क्या उनका एक्सपीरियंस है? नहीं. बट क्या उनके पास यूज़ केसेस ऑलरेडी बनाए हैं? यस. एजुकेशन के अंदर भी, अगर सिटी में एजुकेशन का जनरली कोई भी नेटवर्क उठा लें आप, मतलब सिटीज़ और के तो बड़े हो गए. सिटी के अंदर भी आई थिंक लाखों लोग मौजूद है. सिटी पाकिस्तान से बाहर भी सिटी है.
तो इट्स नॉट कि सिर्फ पाकिस्तान के अंदर सिटी मौजूद है, सिटी इज़ अ वेरी बिग नेटवर्क, वहाँ पे एक लाइसेंसिंग की वो थी, एज लॉन्ग एज टेक्नोलॉजी वाला पार्ट कूड़ा लेकर आ रहा है. नाउ दिस इज माई क्वेश्चन, मतलब आई डोंट हैव द आंसर टू इट, but Kuda itself, again, na Kuda na Hugo Safe are like big fintechs. They are not the OPs or the Times or the Alipays or the Paytms of the world, right? Kuda is not even the biggest African player. Hugo Safe is not even in the top 5 Singaporean fintechs on that particular building they operate from. ये तो अगर इस building in the 15 fintech है तो Hugo पे probably 7 11 12 आ रहा होगा. उनके 60,000 customers आए हैं अभी तक. So it's a very small fintech. Even Sada Pay, Naya Pay, and everyone has more scale than them, which is very strange कि उन्होंने फिर उसको चूज किया. और उनका एक्चुअली पेमेंट्स का एक्सपीरियंस तो लिटरली अभी शुरू हुआ है इस साल. उन्होंने बैंकिंग लाइसेंस अप्लाई, उनको क्योंकि मॉनेटरी अथॉरिटी से जो पे EMI लाइसेंस ऑफ सॉर्ट्स जो मिला है वो इस साल मिला है. तो उससे पहले तो वो लोग वेलटेक करते थे. वेलटेक इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम बैंकिंग, और वेलटेक के अंदर आपको लाइसेंस लेने की ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है. ले ले तो अच्छा है, नहीं ले तो भी आप काम चला सकते. बैंकिंग ग्रुप स्टेट बैंक आई थिंक जस्ट वांटेड सम मोर रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ट्रेडिशनल ग्रुप्स. और इसका एक पॉजिटिव इसका ये हो सकता है, मे बी दे गॉट स्केयर्ड ऑफ द फंड रेजिंग थिंग इज वेल, कि फंडिंग तो आ नहीं रही है, वीसी वालों को, वीसी फंडेड को देती कि उसके बाद पैसा आएगा नहीं, क्योंकि एंड में उनकी स्पॉन्सर की कमिटमेंट तो चली गई ना इन अ सेंस. क्या हम कह सकते हैं कि अगले उसमें कोई 70-80 मिलियन का डॉलर का राउंड कोई रेस करने वाला है, और दिस इज द कॉस्ट दैट यू नीड टू बिल्ड दैट डिजिटल बैंक. No, I was thinking like the same thing. So, if you look at the N factor, and the N factor is very evident with the two companies, right? Easy Pesa, Nadeem Hassan has a background. He was involved with it initially, of course, and now that Rakimi he's involved with it. But other than that, he was also involved with like State Bank of Pakistan. He was, I think, it was on some sort of a board or advisory committee there. He was part of it. Yeah. So he had to resign because, of course, it's a conflict of interest because your company's applying for a license while you sit on the board. So, but he did resign, and everything is like looks, at least on the paper, it looks kosher. Like when you still like drill down on the 5 companies, like they are not the 5 best companies that could have gotten this license, given the tech, given the desire by other really good players to be better at this digital banking, because the idea of digital banking is, of course, financial inclusion. So given what what do you think will happen in terms of financial inclusion? Will it change, or will it still be one of those things that is really up in the air and it might or might not change? फाइनेंशियल इंक्लूजन की चेंज होने वाली बात पे तो आई थिंक कोई भी आता ना, तो मेरा उस पर नजरिया यही था कि वहाँ पे तो कुछ नहीं बदलने वाला है. वो जस्ट रियलिटी. आई थिंक एट वन पॉइंट हम सबको कबूल कर लेनी चाहिए कि वो नहीं बदलने वाला. आप कोई भी उठा के ले आए, जितना ही पन्ने खानो नहीं हो सकता. अच्छा, इन अ सेंस आई थिंक it's a different way of looking at it. I'm not, for example, I thought time itself, जितना मैंने टाइम का साउथ अफ्रीका में ग्रोथ देखी, पढ़ा उसके बारे में देखी, तो ऐसा नहीं. Time was a very interesting company. OP was a very interesting company. They already had executed and scaled in Africa, which is again not an easy market. Pakistan is not an easy market either. तो उनका experience I think was more valuable than anyone else. वहाँ पे थोड़ी सी हैरानी हुई थी. मगर यहाँ पे अगर हम उन्होंने फाइनेंशियल इंक्लूजन वाला नेट एक्चुअली बढ़ाया था. टाइम प्राइमरीली फोकस्ड ऑन अनबैंक्ड, और उनका प्राइमरी ग्रुप ही यही है. तो दैट इज वन डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड रेस्ट. इजी पैसा का सवाल ये है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के हवाले से इजी पैसा हैज डन अ ट्रेमेंडस जॉब इन पाकिस्तान. देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट. द ओनली इशू हैज बीन कि इस बार वो क्या मुख्तलिफ कर लेंगे जो कि पहले नहीं कर सकती थी. उसका एक छोटा सा ये हो सकता है कि इजी पैसा currently makes some money and spends a lot of money maintaining its branchless network, जो कि बड़ा मुश्किल होता है. तो जब वहाँ पे financial pressures वहाँ से हटेंगे, they can spend that money to build better experience, to reach a wider audience. That is one area जहाँ पे easy पैसा शायद किसी हद तक कुछ बेहतर कर सकता हो, और उनका कॉस्ट ऑफ फंड्स उनके कम हो जाते हैं. तो माइक्रो फाइनेंस की जनरली 2 से 3 परसेंटेज पॉइंट कॉस्ट ऑफ फंड ज़्यादा होती है. जो डिपॉजिट लेते हैं उनको महंगा पड़ता है कंपेयर टू ट्रेडिशनल बैंक.
मगर अब क्योंकि डिजिटल बैंकिंग तो माइक्रो फाइनेंस बैंक की कस्टमर का रिस्क ज़्यादा होता है, और ये प्राइमरी डीलर्स में भी नहीं आता है, तो उसकी थोड़ी पीछे कहानी अलग है, बट इनके पास थोड़ी सी महंगा पड़ता है इनको फंड। डिजिटल बैंक में इन थ्योरी वो फंड महंगा नहीं पड़ना चाहिए, इट शुड बी ऑन पार विद एनी बैंक। तो माइक इजी पैसा को वहाँ से प्राइमरी फर्क पड़ेगा। उसके अलावा फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर मैंने एक आर्टिकल लिखा था कुछ टाइम पहले कि स्टेट बैंक ने रीजनल बैंकिंग रेगुलेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या रखे हैं। उसमें एक चीज़ ये थी, ये स्टेट बैंक शुरू करता है फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़नी चाहिए, जेंडर इंक्लूजन बढ़नी चाहिए, एक्सेस टू क्रेडिट बढ़ना चाहिए। फिर जब स्टेट बैंक आप पॉलिसी के एंड तक आते हैं ना, तो जहाँ पे वो रिक्वायर्ड से सिर्फ एनकरेज हो जाता है लफ्स, एनकरेज टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन या जेंडर इंक्लूजन या एक्सेस टू फाइनेंस। तो एनकरेज पे है वो इंशाल्लाह वाला जो भी चक्कर है, तो उससे हम ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए हमें कि उससे एक्चुअली बदल जाएगा। जहाँ पे स्टेट बैंक एक्चुअली थिंक, एंड आई एक्चुअली थिंक, आई डोंट नो कि इफ दीज प्लेयर्स कैन डू दैट मीनिंगफुली, बट जहाँ पे उम्मीद थी इनिशियली या एक्सपेक्टेशन लगा सकते थे, दैट वाज द एरिया जहाँ पे कस्टमर्स एक्सपीरियंस इंप्रूव होगा। अब कस्टमर एक्सपीरियंस, लेकिन कस्टमर एक्सपीरियंस प्ले इन माय ओपिनियन पाकिस्तान के अंदर इज़ अ वेरी अर्बन मिलेनियल कॉन्सेप्ट, और आप एंड में देख रहे हैं 3 करोड़ 4 करोड़ की आबादी मोरलेस जिसका कस्टमर एक्सपीरियंस का के चोंचले पाले हुए हैं, बाकियों को कस्टमर एक्सपीरियंस के चोंचले नहीं है। बेहुदा तो बेहुदा ऐप बना के दे देंगे, इट वुडंट मैटर एज लॉन्ग एज ऐप तो दे रहे हो, उन तक पहुँचो तो सही, उनको ऑनबोर्डिंग करके दे दो सिंपल, पहले बाकी बाकी खैर है। तो दैट इज़ एन एरिया यहाँ पे आई डोंट थिंक कोई फ़र्क पड़ेगा। इन थ्योरी फातिमा फॉर एग्जाम्पल डज हैव अ बेटर रीच, या इन थ्योरी अगर हम सिल्वर लाइनिंग ढूंढने, तो लॉजिस्टिक्स के अंदर बड़ा मसला है पेमेंट्स का। दिस इज द रीजन पोस्टेक्स हैज डन सो वेल अपेरेंटली। तो इन यूज केसेस बन रहे हैं, एंड आई थिंक स्टेट बैंक वाज लुकिंग एट यूज केसेस, बट नाउ द क्वेश्चन इज कि सबसे ज़्यादा अंडर सर्व्ड अगर हम सेगमेंट उठा रहे होते हैं, एग्री तो हो गया, उसके अलावा लॉजिस्टिक्स इज नॉट द मोस्ट अंडर सर्व्ड सेगमेंट। फार्मा के अंदर क्या बैंकिंग ऐसा कर लेगी, एंड में अगर एलसी अगर खोलनी है तो वो तो अभी मेट्रो भी खोल देगा, उसके लिए आपको टेक की आई डोंट थिंक कोई ज़रूरत है। व्हाट एग्जैक्टली, हाउ डज दैट अलाइन विद देयर ओन group objectives rather than just diversifying further? That part hasn't been clear at all yet. और even local, आपका आई थिंक एक सवाल कॉल उसमें होता कि लोकल ग्रुप जो है ना, प्राइमरीली द वे इट सीम्स लोकल ग्रुप ही लीड करेगा बिजनेस को, इंटरनेशनल प्राइमरी टेक्नोलॉजी देगा अपनी जो उन्होंने ऑलरेडी बना ली है। तो इट्स सॉर्ट ऑफ बाइंग ऑफ द रैक टेक एंड गेटिंग दैट ऑफ द रैक टेक पार्टनर एज योर जेवी पार्टनर। और उनको भी आई थिंक ये था कि उन्होंने 15-20 को मैसेज किया होगा, रेवल्यूट ने मना कर दिया होगा, ये रेवल्यूट की औकात नहीं आ रही होगी, फिर उन्होंने 2-4 को और मैसेज किया होगा, वो फिर डायरेक्टली कम्पीट कर रहा है, तो एंड में कूड़ा मिला और उन्होंने कहा चलो ठीक है कूड़ा आ जाए। फातिमा की थिंकिंग ऐसी लग रही है मुझे फिलहाल। यार हुगो वालों की तो बिल्कुल ही यही है, हुगो के साथ जो उनके गेट्स और मुलर है। So the bottom line is the PayPal is not coming to Pakistan, right? ये तो that's अभी करेंगे, आई थिंक there will be someone with this comment. तो मैं यही सोच रहा था, मैं उसकी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ट्वीट्स वगैरह मतलब जो उन्होंने पोस्ट किया था देख रहा था, तो मैं कमेंट्स पढ़ा था नीचे, मैंने कहा किसी ने तो कुछ ना कुछ इस बारे में लिखा होगा कि भाई when is PayPal coming to Pakistan, because that is the most asked question, लेकिन no one asked that question, क्योंकि लगता है मुझे लोग अब तक आ गए, अभी तकरीबन 20 साल हो गए तो पेपाल को आए हुए, और अब तक नहीं आया, तो फिर अब तो आगे भी आएगा नहीं। हर बैंक को स्टेट बैंक ने लाइसेंसिंग के अंदर कहा है कि इवेंचुअली लिस्ट होना होगा, एंड दैट इज डिफिकल्ट थिंग इज वेल कि वीसी वाले अगर स्टार्टअप्स आते भी तो उनका एंड में थोड़ा सा रिस्क ही होता है कि अगर आप 400-500 मिलियन की वैल्यूएशन पे आ रहे हैं स्टॉक मार्केट विद लॉसेस, स्टॉक मार्केट के अंदर आप लिस्ट कैसे होंगे पर 400-500 मिलियन की वैल्यूएशन? यहाँ पे एवरेज वैल्यूएशन एवरेज 0.7 0.8 के प्राइस टू बुक के ऊपर कोई स्टॉक ट्रेड कर रहा है बैंकिंग का, तो आप किस तरीके से अपने
ग्रॉस ट्रांजैक्शन वैल्यू के 7x ट्रेड कर रहे होंगे. That was one of the questions that I had about the policy. But now that none of the players that have entered are specifically or exclusively VC play, and players who are more than happy to go and list on the stock exchange, value them accordingly. I think that could be one of the reasons State Bank जो कि थोड़ा सा एहतियात से चल रहा था about VC driven startups, क्योंकि policy does mention unsustainability part. तो losses, initial losses हो जाएं, but there should be 2 से 3 साल का उन्होंने कहा है कि आप सब्सिडाइज नहीं करें, अननेचुरली सब्सिडाइज ना कर रहे हो सर्विस. तो स्टेट बैंक ने ये मेंशन किया था. तो दिस कुड बी पार्ट ऑफ द रीजन. एंड आई थिंक अब देखते हैं क्या होता है. और ये 2 से 3 साल लगेंगे सब इजी पैसा को छोड़ के बाकियों को आने में. लाइसेंसिंग का ट्रैक इज एटलीस्ट 2 years long for everyone, except maybe for easy पैसा. When do you, so you mentioned this a little bit, but so you think digital banking will go into play within like 3 to 4 years, or you think it will be sooner than that? लाइसेंसिंग को देखते हैं ना, हमें देखना चाहिए कि EMI में कितना टाइम लगा लाइसेंसिंग है. अच्छा, लाइसेंसिंग में भी स्टेट बैंक प्रोसेस इज वेरी सिमिलर टू प्रीवियस लाइसेंसिंग रिजीम्स. लाइसेंसिंग का तरीका ये होता है, सबसे पहले आप इन प्रिंसिपल अप्रूवल के लिए अप्लाई करते हैं, जिससे पहले की टाइमलाइन का किसी को कोई आइडिया नहीं है. तो इन प्रिंसिपल तक पहुंचने में भी आपको 1.5 साल लग सकता है. आई नो फॉर अ फैक्ट एक एग्जिस्टिंग पाकिस्तानी कंपनी 2021 के अगस्त में जब उनसे मिला था, तब से वो लाइसेंस के लिए अप्लाई किया हुआ था उन्होंने, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. अभी तक आया नहीं है उनका इन प्रिंसिपल. बट इन प्रिंसिपल के बाद भी इन प्रिंसिपल के बाद आता है पायलट के बाद आता है कमर्शियल. अब मैं आपको एक पुराने उसमें से बता रहा हूँ. नंबर ऑफ डेज टेकन टू रीच पायलट फॉर नया पे वॉज 231 days. Number of days taken to commercial was apparently 469 days. तो ये 400, 350, 400, 450 दिन लगते हैं पायलट से कमर्शियल में. और एवरेज नंबर ऑफ डेज फ्रॉम इन प्रिंसिपल टू पायलट इज 260 days. तो 260 दिन वहाँ लगा ले, और उसके बाद आप अपने 400 कुछ 453 डेज वहाँ लगा ले. तकरीबन 2.5 साल की विंडो आती है. इजी पैसा शायद ये रिक्वायरमेंट्स अवॉइड कर सके, क्योंकि इजी पैसा इज ऑलरेडी लाइसेंस्ड बाय द स्टेट बैंक. आई डोंट रिमेंबर व्हाट वाज देयर ट्रीटमेंट फॉर माइक्रो फाइनेंस, बट स्टेट बैंक हैड अ क्लॉज इन द रेगुलेशन कि अगर आप EMI हैं और आपने EMI में अपने पायलट अपना कर लिया, तो आपका वो कन्वर्ट हो जाएगा टूवर्ड्स डिजिटल बैंकिंग. ऐसा भी ये उन्होंने क्लॉज दे दिया था. तो लेकिन 5 में से सिर्फ इकलौता लाइसेंस्ड एंटिटी इज टेलीनॉर, यानी कि इजी पैसा. बाकी सबकी तो साइकिल वही रहने वाली है. तो 2.5 साल तो आप कहीं नहीं गए, भूल जाए. लाइसेंस की रेगुलेशन आई भी लिटरली पिछले साल 6 जनवरी को थी, अगर आपको याद है. फर्स्ट और फाइनल ड्राफ्ट की 6 जनवरी. मार्च 30 को डेडलाइन थी. मार्च 30 से आप 10 महीने बाद अप्रूवल आए. Thank you so much for helping us understand like what is going on and talking so much about the license process and the framework and everything. This was very, very interesting, and hopefully good things will happen soon, and this digital banking license will start like a wave of more players coming in and applying for the license, and hopefully there will be financial inclusion will increase. So thank you so much for joining me. Thank you so much for having me. Thanks for listening to the Misal podcast. I hope you enjoyed the podcast and will thank me by writing a review or sharing it on social media. Make sure you follow and subscribe so you don't miss the next episode. Thanks again. See you soon.